Okay, so last topic we have covered about the three elections on which Congress was very dominant, and we have covered that. And I told you that now today we will be starting the fourth general election, that is 1967, which is the most important election. From here we see the period of transition. If you talk about the Indian political system, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं? There is a transition, there is a change. Because before this, जो three elections हुए थे general elections, उसमें we have seen the complete dominance and control of Congress over the Indian politics. But this election say, that is the fourth general elections for India, we have seen a transition. There is a change in the political system of India. And before this we have already read dates. I have told you 1952 first, second was 1957. Please remember this date. These will be very important for you when you are writing your answers and to construct that. Then 1962. Okay, this here the functioning was very smooth. If you talk about the political system in India, बहुत smooth चल रहा था. But here this, if I talk about the tenure of this particular election, what was the tenure? 1962 to 19 कितना होगा? और 5 years का गैप होगा तो कितना हो जाएगा? 1967. So basically in the last class, especially Khushi and Siddharth and Govinder, we have discussed that what are the things which happened between 1962 till 1967. What were the important challenges which we had to face? क्या क्या problems हमारी country में आ रही थी? उसमें we had studied which were the major problems. Jayashri, can you tell me any one problem which we had discussed? Keep sitting and you can answer while sitting also. The death of Jawaharlal Nehru. Quick, in a very short period, we had like passed away two important prime ministers of India. Then there were droughts, monsoon failure, low food production, shortage of food, poverty. So this was the period which is called the most dangerous decade, 10 years. अगर 1960 के बाद 1970 तक देखें तो ये जो 10 years का गैप है, it is called one of the most dangerous decades of Indian politics. In economically, politically, socially and economically, in every sphere हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा problems face किए हैं. If we see in 10 years को, इसमें हमारे after यहाँ पे नेहरू हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे 64 में, he passed away. Then शास्त्री जी बने, he passed away in 66. After that, Indira Gandhi was the prime minister, but she was the prime minister after 66 कितना होगा? Till 67. It means एक year के लिए she just got the period of 1 year to act as a prime minister. इसमें वो she was a very inexperienced, young, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था एंड वो प्राइम मिनिस्टर बनी किस पीरियड में जहाँ पर इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस थी. होता है ये बना मुझको कोई पोस्ट मिली, बट आई हैव गॉट द वेरी कंफर्टेबल जोन वेयर आई हैव लॉट ऑफ सपोर्टिव पीपल एंड आई गेट ऑल द फैसिलिटीज एंड प्रायोरिटीज जो मेरे को फंक्शन करने में बहुत ईजी और हेल्प हो. बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई है? इंदिरा गांधी के लिए जो सिचुएशंस थी बहुत चैलेंजिंग थी. शी वाज नॉट गेटिंग द प्रॉपर सपोर्ट विच शी वाज रिक्वायरिंग. इंटरनली कांग्रेस के अंदर क्या हो गया था? फैक्शंस बन गए थे. व्हेन आई एम टेलिंग अ टर्म फैक्शंस मींस ग्रुप्स हो गए थे. दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज. जब भी हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस की कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी कि कैपिटलिस्ट लोग ये हैं या कम्युनलिज्म कोई फॉलो कर रहे हैं इस टाइप से. तो उसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, बट फिर भी सब एक साथ थे इंडिपेंडेंस के बाद. तो इसके अंदर फैक्शंस बनने लगे. तो इंदिरा गांधी के लिए काफी चैलेंजिंग रहा जो हमने पढ़ा. अभी हम इसको और देखेंगे कि 66 जो ये पीरियड था 66 से 67 इंदिरा गांधी जो पीएम बनी है हमारी, उसमें व्हाट ऑल द प्रॉब्लम्स शी हैज टू फेस बिफोर द इलेक्शन ऑफ 1967. पहले हम challenges रीड करेंगे, उसके बाद we will see the what were the electoral verdicts mean, what were the outcomes and results of this election. पर उससे पहले हम क्या देख रहे हैं? बैकग्राउंड देख रहे हैं फिर से कि 96 में जो एक है, पहले हमने जो बैकग्राउंड देखा we have seen about 62 से 67 तक what were the problems. पर अभी जो ये टॉपिक्स आई एम स्टार्टिंग इलेक्शंस ऑफ 1967, इसमें हम देख रहे हैं ना 66 से 67 जो 1 ईयर पीएम का किसको मिला? इंदिरा गांधी को. उसमें उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया है 1 ईयर के लिए. और 1 ईयर क्यों मिला होगा सिद्धार्थ? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे इंदिरा गांधी को व्हाई शी जस्ट गॉट द 1 ईयर टू बी द एक्ट एज अ पीएम? बिफोर दैट सर ये टेन्योर ऑलरेडी क्योंकि इट वाज रनिंग 1962 से 1967 तक चल रहा था. इसी के बीच नेहरू जी बने, इसके शास्त्री जी बने. उसके बाद क्या हुआ? बस 1 ईयर बचा था. इस गवर्नमेंट का जो टेन्योर खत्म होने वाला था, 1 ईयर बचा था, पर खाली तो नहीं छोड़ सकते ना सीट. तो उसके लिए भी इलेक्शन हुआ था. तो यहाँ पे इंदिरा गांधी 1 साल के लिए बनी, बट बहुत चैलेंजिंग था वो 1 ईयर उनके लिए. और इसी में उनको तैयारी भी करनी थी किस इलेक्शन की? जो 67 के बाद होने वाला था. ठीक है, 1967 के बाद जो होने वाला था, इसके लिए शी हैड टू गेट प्रिपेयर्ड. ठीक है, शी वांटेड टू बी स्ट्रांग, शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. एज यू नो वो पीएम किसकी हेल्प से बनी थी? विद द सपोर्ट ऑफ द कौन थे? ओल्ड कांग्रेसियंस को क्या बोलते हैं हम? सिंडिकेट्स.
So she wanted to get free from the influence and control of the syndicates, and she wanted to be an independent personality as a politician, as a leader. Okay, so now we will see इस 1 year में what were the problems she was facing. Okay. Did you have taken reading further in this chapter? किसी ने लिए? चलिए. So the topic here is 4th general elections. And if I remind you before this also in this chapter I have made 4 videos. This is the part 5 of this video. And sorry I forgot to tell the new students. You must be thinking parties and party system in India. This is the new name of this chapter which has been merged with chapter 2 and chapter 5. आपकी बुक का जो चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है? Era of One Party Dominance, and this chapter that is Challenges to and Restoration of Congress System. These 2 chapters have been merged and the name has been given as Parties and Party System in India. Although some topics have been related, but some part has been added, which we will be doing. So after this name, first topic we had done. What do you understand by political parties? Simple शुरू किया था first part से. Meaning पढ़ा हमने political parties का. Then we had seen what are the functions of political party generally. कोई political party, what are the functions of any political party. Then we have seen what are the important components of any political party. So we had done these topics already. Then in the second video, I had discussed about party system in India. Then generally we were talking in the first video what is political party, what are the functions of political party. Then I came up with the second video in which we had discussed party system in India. What do you think, Kushi, which is the type of political system in India or party system in India? किस type of party system है हमारे country में? है बेटा? Loudly. Anything? What do you feel? It's a single party, multi-party or two-party system? Multi-party system, and it is obvious, as you know, India is having so much of diversity. It is to be a multi-party system where there are various social groups, various communities, various groups with various ideologies. हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी से सबको सेटिस्फाई नहीं हो सकते थे. कांग्रेस इतनी डोमिनेंट इसलिए रही बिकॉज उसने अपने अंदर हर एक टाइप की आइडियोलॉजीज, हर टाइप के सोशल ग्रुप को, लेबर क्लास को, इलाइट क्लास को, प्रिंसली स्टेट्स के नवाब्स होते थे जो, उनको जो प्रेफरेंसेस देनी थी, प्रिविलेजेस देनी थी, सबको एक साथ रखा हुआ था. इसीलिए दे वर डोमिनेंट फॉर फर्स्ट 3 इलेक्शंस. ठीक है. सो आई वाज टॉकिंग हमारा जो सिस्टम इंडिया का वो क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टीज है. ओके. देन आई हैव सीन देन वी हैव सीन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. यहाँ पे रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंडिया में. इफ यू वांट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, वी कैन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, बट फॉर दैट वी विल हैव टू गेट आवरसेल्फ रजिस्टर्ड, and the process for the registration there are various rules and regulations and norms which are to be fulfilled. It means there are various qualifications if you want ourselves to be acknowledged as a political party. और वो कुछ रूल्स है जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया. नेशनल पार्टी अगर हमें बनना है तो these are the qualifications required. अगर हमें स्टेट पार्टी बनानी है तो these 3 are the eligibilities. इनमें से अगर हम कोई फुलफिल करते हैं तो हमारी पार्टी क्या बन जाएगी, स्टेट पार्टी. और ऐसे ही रीजनल पार्टी के लिए भी. तो देयर आर वेरियस क्वालिफिकेशन जिसको हमें क्वालिफाई करना पड़ता है. हम नेशनल पार्टी बन सकते हैं, स्टेट पार्टी भी बन सकते हैं, क्योंकि हम क्या डेमोक्रेसी में रह रहे हैं. ऑल हैव द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. देन वी हैड सीन द फैक्टर्स वी हैड स्टडीड. वन कंप्लीट वीडियो हैव टेकन ऑन द फैक्टर्स. कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कांग्रेस ने डोमिनेंस बना के रखा. तो उसमें एक हमारा ये भी आता है, हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम चलता है, इलेक्शन सिस्टम. You must have studied in class 11th. Yes, Kushi, you are right. What? अच्छा, जैसे ने बोला, yes, FPTP सिस्टम चलता है हमारी कंट्री में. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे हमने देखा है, उसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. उसका जो रिजल्ट आता है उसमें ये भी कहा गया है कि जो कांग्रेस की हम दिखाते हैं इतनी ज़्यादा डोमिनेंस थी नहीं. उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बूस्टेड जो क्या बोलते हैं इसको, डोमिनेंस. ठीक है. आर्टिफिशियली बूस्टेड डोमिनेंस उनकी दिखाई गई है, क्योंकि इतने लोग वोट उनको करते ही नहीं थे जितनी सीट्स उनको मिलती थी. क्योंकि आपको पता है ना, हमारा जो FPTP सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं लाने हैं. अगर आप लोग का इलेक्शन करा दो, 8 लोग बैठे हो, मैं बोलूँगा 50 वोट्स है. अगर किसी के हाईएस्ट 25 से कम भी आ गए, आपके 20 वोट्स आ गए, बाकी सबके 8, 9, 10, तो आई विल कॉल यू एज द विनर, यू विल बी इलेक्टेड. इसमें यही होता है कि यू हैव टू गेट एटलीस्ट अ मेजॉरिटी. 25 के ऊपर लाने की जरूरत नहीं है आपको. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आते थे कि पता चल रहा है कांग्रेस को आउट ऑफ 100 मिले 40% वोट्स है पूरे इंडिया में, पर सीट्स कितनी परसेंट मिल रही है उनको, 80, 85 या 90% सीट्स मिल रही हैं. वो किसकी वजह से होता था, FPTP सिस्टम. आई थिंक 9th में हमने आपको अच्छे से, सॉरी 11th में अच्छे से आप लोग कर चुके होंगे. ठीक है. तो अब हमने फिर लास्ट वीडियो में पढ़ा है, हमने जिसमें शुरू किया फॉल ऑफ
कांग्रेस सिस्टम, और जब भी हम फॉल मतलब उनका डोमिनेंस कम होने लगा, व्हेनेवर वी विल स्टडी अबाउट फॉल ऑफ कांग्रेस सिस्टम, तो हम कहां से शुरू करेंगे 1967। तो 62 से 67 में जो जो प्रॉब्लम्स हुई उससे क्या हुआ, कांग्रेस का डोमिनेंस वाज रिड्यूसिंग, उसमें जो प्लेटफॉर्म पे जिसको खड़े रहते थे वहां से वो वीक होना शुरू हो गए, एंड फाइनली हम यहाँ पे देख रहे हैं 60 से 67 जब पीएम हमारी बन जाती इंदिरा गांधी और डोमिनेंस कम हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था, विल सी द प्रॉब्लम्स हियर। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। I hope next class में फिर से new student आए, then I will have to repeat this. I will not repeat again. I will tell them to pause the video. So now, fourth general election 1967. As it's written in the very simple language, you must have read. The year 1967 is considered a landmark year in India's political and electoral history. This I have already told you. This is one of landmark which we have to remember because this is the year from where we have seen the transition, a change in the period. Okay. So in chapter 2 you read about how the Congress party was dominant political forces. इसमें तो chapter 2 लिखा है, but we have discussed in this chapter only कैसे first में वो dominant थे इतना throughout the country from 1952 onwards. This trend was undergone significant change. पर जो इतना dominant थे यहाँ पे हम यहाँ क्या देखेंगे 67 के इलेक्शन से there will be a significant change, transition आएगा, बहुत बड़ा change आएगा dominance में किसकी, कांग्रेस की। तो context of the election, when we are reading about this topic, context of elections means इलेक्शन हुए नहीं है अभी भी हम बता रहे हैं, जब इलेक्शन से पहले चल रहा होता है ना प्रोसीजर, सब एक दूसरे को कन्विंस कर रहे होते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है, सब अपनी पॉलिसीज प्लान्स आगे रख रहे होते हैं, ठीक है, एजेंडास बता रहे होते हैं, व्हाट विल बी आवर एजेंडास कि हमें क्यों वोट कीजिए। तो ये है कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस 1 ईयर 1966 से 67। नाउ इंदिरा गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं क्या होता है। इन द इयर्स लीडिंग अप टू फोर्थ जनरल इलेक्शन द कंट्री विटनेस मेजर चैलेंजेस। तो जब हमारे इलेक्शन होने वाले थे 1967, हमारी कंट्री ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, एंड व्हाट वर दोस? सबसे इंपॉर्टेंट, वी हैड लॉस्ट 2 प्राइम मिनिस्टर्स had died in a quick succession. They have written the word quick succession and the meaning of succession. Saloni again. I have told you to remember the names or to write the meaning when I am telling you. Yes, Nikita, succession. हेरी क्रॉस कह सकते हैं, थोड़ा सा हटा के बोल। सर जैसे कि हेरी क्रॉस कहते हैं ना, हायरार्की। ओके, सक्सेशन उसके बाद कौन रहा? तो बहुत जल्दी वी लॉस्ट 2 प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। पहले कौन? नेहरू 64, 66 में लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, the 2 prime ministers had died in quick succession and the new prime minister, और जो new prime minister इंदिरा गांधी was the new prime minister who was being seen as the political novice had been in office for less than a year। और अभी इनको ज्वाइन किए हुए बहुत 1 साल से भी कम हुआ था इंदिरा गांधी को, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। You will recall from the discussion in chapter 3 and the previous section of the chapters that the period was fraught with grave economic crisis. As I have discussed this also in the last video, in the last class, what were the important challenges after there were quick succession or death of 2 prime ministers. After that क्या हुआ था? Economic crisis. And this is a series. अगर आप देखो economic crisis का मतलब क्या है? Drought आया, drought आएगा तो what will उसका impact किस पे पड़ेगा? एग्रीकल्चर में। और हमारी कंट्री क्या है? मोर देन 50% हमारी जो पॉपुलेशन पहले से ही थी, और मोर देन 50 किस पे बिजी थी? प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मींस एग्रीकल्चर में बिजी थी। जब ड्रॉट आ जाएगा, एग्रीकल्चर फेल होगा तो क्या होगा? पॉवर्टी हो जाएगी, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। फिर उसके बेसिस में जो प्रोडक्शन होता है हमारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड, उनमें क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बहुत लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट करानी पड़ेगी चीजें। फॉर दैट वी विल हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ आवर इकोनॉमी इनटू इट, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंजेस हमारे रूल्स, तो इट्स द चेन। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो एक चेन है पूरी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री किसके अंडर आ गई? पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ड है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, बट इट इज कनेक्टेड विद सो मेनी थिंग्स इफ यू सी, ठीक है, रेलेवेंट है। So chapter period have fought a grave economic crisis resulting from seeing the चीजें किससे शुरू हो रही है? failure of monsoon, widespread drought, उस ड्रॉट की वजह से और भूखमरी की वजह से मेनी डेथ्स भी हुई थी इन मेनी स्टेट्स, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेजेस, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डिप्लीशन क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग द थिंग्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारा शॉर्टेज हो गया है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें अपने रुपीस में उसे पेमेंट नहीं करना पड़ता है, किस में करना पड़ता है? डॉलर्स में। इसीलिए कह रहे हैं जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो क्या हो गया? डिप्लीट हो गया। ड्रॉप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंबाइंड इन द शार्प राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। प्लस इस टाइम पर ही अगर हम देखें 62 से 67 वी हैव फॉट हाउ मेनी वॉर्स?
two wars with our neighboring countries, China in 1962, which we have already discussed in the previous topics, and in 65 we had a war with पाकिस्तान. So in that, जब भी कोई वॉर होता है तो छोटा मोटा एक्सपेंडिचर नहीं है, ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है उस पर. हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी प्रेशर आ गया. सोचो कितना डिफिकल्ट चैलेंज और प्रॉब्लम्स रही होंगी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो 1 ईयर के लिए बस प्राइम मिनिस्टर है. इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो जा रहा है, 2 वॉर्स भी हो जा रही है, इकोनॉमी ड्रेन हो गई थी, ठीक है हमारी. तो देयर वाज लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर हर एंड फॉर कांग्रेस पार्टी कि कैसे 1967 के इलेक्शन में हमें आगे जाना है, क्या एजेंडास हमारे होने चाहिए, बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी विद द रूल द सिचुएशन. जो लास्ट 5 ईयर में सिचुएशन चल रही थी कांग्रेस की, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद देम. ओके, तो ये जो एक मिलिट्री का एक्सपेंडिचर भी याद रखना, जब हम बोल रहे हैं ना इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ एक मिलिट्री का एक्सपेंडिचर को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. One of the first decision of the Indira Gandhi, जब इतनी प्रॉब्लम्स आ गई तो इंदिरा गांधी was the prime minister, तो what she had started taking actions now. जो उनका पहले एक्शन था, what was that? To devaluate the Indian rupee. If I say devaluate the Indian rupee, what does that mean? Can anyone explain? थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म है, ठीक है, but you will have to understand. पहले मान लीजिए $1 कितने रुपीस में मिल रहा था हमें? 5 रुपीस में. एग्जाम्पल दिया है इसमें, ठीक है. अभी वही $1 हमें कितने रुपीस में हो गया? 7 रुपीस में हो गया. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? पहले हम यूएस का $1 वी वर बाइंग फॉर 5 रुपीस, नाउ द सेम यूएस डॉलर $1 वी आर गेटिंग फॉर द 7 रुपीस. तो यहाँ पर हमारी जो करेंसी है इट हैज बीन डिवैल्यूटेड और व्हाट? डिवैल्यू है. पहले जो चीज मैं 5 रुपीस में $1 ले रहा था, अब मुझे अपने 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. मतलब मेरे जो 5 रुपए थे उसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है. तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर हमारी जो रुपये की वो बहुत सिस्टम है पॉलिटिकल, उसको आपको समझने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बट ये था यूएस के प्रेशर के अंडर. देयर वाज अ प्रेशर फ्रॉम यूएस ऑन इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से शी हैड टू डिवैल्यू द पावर ऑफ इंडियन रुपी. जो चीज पहले 5 में मिल पाती थी अब हम उसे 7 में ले रहे हैं. समझ पा रहे हो ना? अपोजिट है. ये नहीं लग रहा है कि 7 में ज्यादा आ गया तो हमारी वैल्यू 7 में तो ज्यादा हो गई है. अपोजिट हो रहा है कि वही चीज हम 5 में खरीद रहे हैं उसी को हम कितने में? 7 में. तो 2 रुपीस हमारी वैल्यू डिवैल्यू हो गई है. See example, same example is again one of the first decision. जब भी याद करेंगे हम, अगर कोई पूछेगा कि 1967 की इलेक्शन से पहले what were the some of the important steps and decisions taken by Indira Gandhi in the political system, तो पहला क्या आएगा? यही, ठीक है. One of the first decision of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee under what was seen to be the pressure from US. It was seen that this was a pressure from US. Earlier $1 could be purchased for less than ₹5. After devaluation, it costed more than ₹7. So this was the first step taken by Indira Gandhi, although it was under the pressure of US. The economic situation triggered oil price rise. People started protesting. और जब ऐसा होगा, suddenly हमारे मार्केट में इंडिया में what happened? There was a price rise, inflation. I hope you understand the term inflation, as you are also the student of economics. मतलब प्राइस हाई होना, ठीक है. क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है. सॉरी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? प्राइसेस विल इंक्रीज, इन्फ्लेशन हो जाता है. तो जब ये हुआ, ये सिस्टम डिवैल्यू किया गया इंडियन रुपी को, देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इंडियन मार्केट, जिसकी वजह से सबसे पहला इंपैक्ट किसके पड़ता है? जो हमारे डेली यूज की कंज्यूमर एक्टिविटीज आई एम सेइंग कमोडिटीज है, व्हाटएवर द इंपॉर्टेंट कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स एंड एक्सेट्रा व्हिच वी यूज डेली, उनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं. एंड दोस आर यूज्ड मेनली बाय द पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास फैमिली. उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस चीज को हैंडल करना. जो रिच पीपल है, एलाइट क्लासेस, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर मेजर हमारा अगर पॉपुलेशन में बड़ा पार्ट देखा जाए तो वो क्या था? पॉवर्टी में था उस टाइम. अगर ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे फूड ग्रेन्स के तो सबसे तो क्या हो गया हमारी कंट्री में? अनडिस्टर्बेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया, ठीक है. डिस्टर्ब रहने लगा, लोगों ने एजुकेशन शुरू कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट करना एंटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ग्रुप्स, हड़ताल, बंद, ये सब समझ पा रहे हो? कितना डिस्टर्बेंस था, अनरेस्ट हो गया था हमारी कंट्री में पूरा इस टाइम पे, लास्ट के 66 से 67. इंदिरा गांधी की इस स्टेप के बाद, उसी को रीड कर रहा हूँ. द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर हो गई, प्राइसेस हाई हो गए. पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज थी, द प्राइसेस हैड इंक्रीज, so people had started protesting against it. Food scarcity, food की कमी, growing unemployment. There were a lot of unemployment in our country at that particular time. Poverty थी, of course there was unemployment as well. And the overall economic condition in the country. So if you talk about overall economic condition, it was really stagnant, रुक गई थी और बहुत पीछे हो गए थे हम इस तरीके से.
तो बंद होने लगे, हड़ताल होने लगी, वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री, और एक जगह में नहीं हुआ कंट्री में, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री, क्योंकि कांग्रेस का डोमिनेंस उस टाइम कहाँ था, पूरे कंट्री में था, ऑलमोस्ट हर जगह था। तो हर कंट्री में हड़ताल, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शंस, ठीक है। जो बहुत पॉपुलैरिटी हुआ करती थी कांग्रेस की, अब वो क्या हो रही थी, सप्रेस। इसीलिए वी आर स्टडीइंग दिस इलेक्शन अंडर ऐसा पीरियड जहां से ट्रांजैक्शन देखा गया। पहले गवर्नमेंट ने जो बोल दिया, जो कर दिया, पीपल हैड ब्लाइंड फेथ एंड ट्रस्ट ऑन नेहरूज गवर्नमेंट, बट फ्रॉम हियर वी आर सीइंग अ पीरियड जहां से सिग्निफिकेंट चेंजेस और ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? ओके। नाउ द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर पीपल वर इवन मोर एग्रेसिव व्हेन दे सॉ द स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो ये प्रोटेस्ट और हड़ताल चल रहे थे, पीपल सॉ इट एज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि हमारी कंट्री में थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए पीपल आर बिहेविंग इन सच अ वे, दे आर प्रोटेस्टिंग। गवर्नमेंट वर नॉट एक्सेप्टिंग दैट जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हड़ताल हो रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे थे? प्राइस राइज की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो लोग जो पॉवर्टी में जा रहे थे, उन्हें फूड नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से हो रहे थे। पर गवर्नमेंट वाज सेइंग दिस वाज द ओनली प्रॉब्लम ड्यू टू लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो इससे क्या हुआ, लोगों में और ज्यादा गुस्सा हो गया। तो और ज्यादा देखिए आगे क्या होता है। The government saw the protest as a law and order problem and not as an expression of people's problem. उन्होंने people's की प्रॉब्लम को नहीं समझा यहाँ पर। This further increased public bitterness and reinforced popular unrest. इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर अनरेस्ट होने लगे, लोगों के अंदर कड़वाहट आ गई। बिटरनेस मींस और गुस्सा, दे वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट नाउ, कि गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रही, इनफैक्ट दे आर अंडरस्टैंडिंग और दे आर इग्नोरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल, उनको ऐसा लगने लगा। तो सिचुएशंस वेंट फ्रॉम वर्स टू वर्स डाउन। द कम्युनिस्ट ऐसे टाइम में, नाउ दीज टू पार्टीज, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज, दीज आर आइडियोलॉजीज इन इंडिया, जो प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते हैं और एक इसको पब्लिक चीजों को सपोर्ट करते हैं, लाइक गवर्नमेंट के अंदर जो कंट्रोल में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन और कम्युनलिज्म। और जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, दे यूज्ड टू सपोर्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरी सेक्टर, वेदर वी टॉक ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी को प्राइवेटाइजेशन पसंद था, किसी को पसंद था कि चीजें शुड बी गो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो इस टाइम पे जो ये दो टाइप की पार्टीज थी, दे लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, दे वांटेड इक्वालिटी, इक्वल रहे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको फूड रेंज मिले, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल। तो इसमें इन दोनों पार्टीज ने इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। जो इंटेंसिटी थी इस प्रोटेस्ट की, जो कॉमन लोग कर रहे थे, इसमें इन दो जो पार्टीज के बड़े बड़े लीडर थे, इन्होंने आकर के इसको बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बना दिया अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, एंटी कांग्रेस हो गया था। You will read the next chapter about how the group, ये इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी हमने, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट है यहाँ पर हमें ये पता है कि जो हमारी कंट्री थी और जो हमारी कंट्री की लोकेलिटी थी, सब लोग इस टाइम सोसाइटी वाज अगेंस्ट द लॉज एंड रूल्स अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और इस पीरियड में ही 1960-67 में हमने सबसे ही इंटेंस हमने वो देखे हैं कम्युनल हिंदू मुस्लिम रॉयट्स देखे हैं। हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो लड़ाई झगड़े जो हमने देखे हैं इंडिया में, इस पीरियड में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हुए हैं 66 से 67, जब ये सिचुएशन चल रही थी इंडिया में, तो कम्युनल राइट्स भी बहुत ज्यादा होने लगे एक दूसरे धर्म के अगेंस्ट, ठीक है। तो अनरेस्ट हो गया था हमारी कंट्री में पूरा। तो ये सब आप बता के ये बताना चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन होने वाले थे 1967 में, उसके एक ईयर के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी इंदिरा गांधी के लिए प्लस कांग्रेस के लिए, जिसको बहुत इजीली लोग एक्सेप्ट करते थे, अब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है नॉन कांग्रेसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉन कांग्रेसिज्म। अब ये क्या है समझते हैं हम इससे, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे लोगों ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे सॉ कांग्रेस वीक होती है, कांग्रेस के अंदर फैक्शंस बन गए हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्शंस, डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, उनको एक दूसरे से प्रॉब्लम है। ऑल्दो अभी भी वो कांग्रेस के अंदर है, पर भी उनके अंदर यूनिटी नहीं है। कई बार देखते हैं ना, वी हैव अ फ्रेंड सर्कल, वी हैव अ ग्रुप, पर हमारे ग्रुप के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स हो, एक उससे नहीं तो हो सकता है जो बाहर से उसका कोई दुश्मन है उससे बात कर लेंगे, उसकी बात उसको बता दे। तो वो कब होगा, जब वी डोंट हैव अ यूनिटी। जब यूनिटी होगी तो कोई बाहर से आके हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता हमारे रिलेशंस को, बट अगर हमारे अंदर ही डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है हमारे बीच में, तो यहाँ पे यही हुआ नॉन कांग्रेसिज्म जो ये टर्म आई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिनोमिना है, ये भी हम देखेंगे जो इस इलेक्शन से ही आया है। 1967 से ही ये टर्म आप और कहीं नहीं पढ़ोगे इंडियन पॉलिटिक्स में, बिफोर 1967 ये टर्म तभी आया। इसमें क्या हुआ, जो अदर देन कांग्रेस पार्टी थी उनको एक अपॉर्चुनिटी, दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम कि कांग्रेस को हम हरा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उसके लिए व्हाट विल वी हैव टू डू, हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। अब जो आइडियोलॉजी, एक राइट पार्टी थी, एक लेफ्ट पार्टी थी, राइट एंड लेफ्ट मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज। मान लीजिए एक को मीठा पसंद है, एक को क्या पसंद है, नमकीन पसंद है, ऐसे आइडियोलॉजीज।
ठीक है, तो उन्होंने एक साथ आना शुरू किया, उनकी डिफरेंट चॉइसेस की, डिफरेंट पॉलिसीज थे, प्लान्स थे, बट स्टिल उन्होंने बोला हमें एक साथ आना पड़ेगा अगर हमें किसको हराना है, कांग्रेस को सेंटर से। वी हैव टू रिमूव द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, कैसे भी, ठीक है। देखिए, दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोर्थ फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, ज्यादा बड़ी कोई अपोजिशन पार्टी तो नहीं थी, एज वी हैव सीन, यहाँ तक कोई अपोजिशन पार्टी थी नहीं, पर पार्टीज थी, इतनी पावरफुल कोई नहीं थी, किसी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था। बट जैसे ही यहाँ पे सिचुएशन आई तो दे हैड गॉट द अपॉर्चुनिटीज, और वो देख पाए वो अपॉर्चुनिटी कि यहीं पर मौका है, वी कैन डू समथिंग फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पे हम कांग्रेस के डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं। तभी आप लिखा अपोजिशन पार्टी, जो सिचुएशन मैंने बताई ना, इकोनॉमिक क्राइसिस, मिलिट्री क्राइसिस, और जो भी लोगों का हड़ताल बंद जो भी चल रहा था, इसमें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी तो आई थी। अब क्या हुआ, जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, और वो साथ आ गए, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा फायर अप कर दिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगे, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो कॉमन लोग डाल रहे थे इतना नहीं पड़ रहा था, पर जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेती हैं तो उसकी वजह से गवर्नमेंट और ज्यादा प्रेशराइज हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज्ड दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता था हमारा, एफपीटीपी सिस्टम विद एग्जांपल्स यू हैव सीन ना, छोटे छोटे एग्जांपल्स में हम दिए। मान लीजिए वी हैव एक जगह है, वी हैव 10 नंबर ऑफ वोट्स, कितने हैं हमारे पास, छोटे जगह 10 वोट्स है, तो देयर आर पार्टीज, एक फर्स्ट पार्टी को मिलता है मान लीजिए 3 वोट्स मिल जाते हैं, एक पार्टी को 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक को 1 मिलता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक हु विल बी द इलेक्टेड पर्सन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं अगर मैं, अकॉर्डिंग टू विच सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हु विल बी इलेक्टेड, थर्ड ना, मान लीजिए कांग्रेस थी, तो ये इलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या मेजॉरिटी लाने की जरूरत थी, नो, यहाँ पे क्या होता है एफपीटीपी में, वी हैव टू गेट द मैक्सिमम वोट्स, चाहे इसको कितने मिले, 33 मिल गए, इसको अगर मान लीजिए इनको 1 1 भी मिलते हैं, इसलिए इसको 2 भी मिल जाते, तब भी इलेक्टेड कौन होता, यही, जिसको भी हाईएस्ट मिल रहा है। बस मेजॉरिटी नहीं होता है कि 10 में से 5 लाने जरूरी है, जबकि अगर हमें गवर्नमेंट बनानी होती है उसमें क्या होना होता है, हमें फिर मेजॉरिटी लाना पड़ता है, मतलब 50% से ज्यादा। पर अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट कर रहे हैं अपने मेंबर को, अपने एमएलए को या अपने एमपी को, तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट कौन होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स है, चाहे वो 50% है या नहीं है, ठीक है। बट फिर इनको रियलाइज हुआ कि ठीक है ये कांग्रेस की यूनिटी है, वो 3 ले आते हैं। अब हम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और मैनी इंडिविजुअल्स, इनका मिला के कितना हो रहा है, 2 4 5 6 7, अगर ये मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 7 वोट्स हो गए आउट ऑफ 10। मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम या मेजॉरिटी हो जाएगी, 5 को जाता है ना, 5 प्लस 10 में से दे आर गेटिंग 7 वोट्स, तो मेजॉरिटी। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर सोचा दैट फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव द अपॉर्चुनिटी, अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो वी कैन स्टॉप एंड फिनिश और द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। बट प्रॉब्लम क्या थी, इनकी क्या थी, आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज क्या थी, डिफरेंट, ओके, दे हैड ऑल द आइडियोलॉजीज, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पॉलिसीज अलग थी, प्लान्स अलग थे, पॉलिटिकल सिस्टम अंडरस्टैंड करने की चीजें अलग थी, और उन्होंने ये नहीं देखा व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, हम एक साथ रह पाएंगे या नहीं। आपको लगता है जाता है हम एक साथ रह पाएंगे, अगर ये गवर्नमेंट बना भी लेते हैं, इतने ज्यादा डिफरेंसेस इनके बीच में, दे विल फाइट अमंग्स देमसेल्फ, दे विल हैव लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग्स देमसेल्फ, गवर्नमेंट का और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट तो क्या करेंगे, ये अपना ही कुछ नहीं कर पाएंगे। बट फिर फॉर द टाइम बिंग अगर कांग्रेस की डोमिनेंस को खत्म करना था, तो ये सिचुएशन हमने बना ली, जिसको हमने क्या बोला, नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है। जब भी नॉन कांग्रेसिज्म आएगा तो इस चीज को ध्यान रखना है, एफपीटीपी सिस्टम में कांग्रेस का डोमिनेंस इसलिए होता था कि इनमें यूनिटी थी, बाकी छोटी छोटी पार्टीज में यूनिटी नहीं थी, तो उनके जो वोट्स थे वो क्या हो जाते थे, डिवाइड हो जाते थे, और इसको आप रोकना था। ओके, सो कांग्रेस रियलाइज्ड दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर, जो उनकी डिवीजन हो रहा है इसकी वजह से कांग्रेस हमेशा से पावर में रही है फ्रॉम द लास्ट 3 जनरल इलेक्शंस। Thus parties that were entirely different and desperate in their programs and ideology got together and formed anti-Congress front. Have you understood what I have explained already? They all got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustment of sharing seats in other. They had also decided अगर आप जीते हैं तो we share the seats amongst other. अगर 1 2 3 ये 3 पार्टी मिलकर के अगर कांग्रेस को हराती है, they will be at the state or at the center government, तो जो उसके अंदर सीट्स होंगी, हम तीनों पार्टी मिलकर के उस सीट्स को डिवाइड कर लेंगे।
सीट्स मतलब मिनिस्ट्रीज होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उन्होंने बोला हम कोई नहीं, हम सेटल कर लेंगे, सबको बराबर बराबर कर देंगे। सो पर हमें एंटी कांग्रेस पार्टी बनानी है, कांग्रेस को डोमिनेंस को खत्म करना है एनी हाउ, और इस टर्म का नाम है नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, दे फेल्ट दैट द इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी, यहाँ पर उन्होंने पहली बार क्यों सोचा, यहाँ पे इनिशिएटिव आई टोल्ड यू, यहाँ पे उन्हें लगा कांग्रेस वीक है, उसका एक रीजन ये था, उन्हें लगा इंदिरा गांधी क्या है, इनएक्सपीरियंस है, न्यू लीडर है, उसको आराम से हरा सकते हैं। एंड द इंटरनल फैक्शनिज्म, ये भी बता दिया, एक्चुअली मैंने चीजें एक्सप्लेन कर दी है, फिर से आगे इंटरनल फैक्शनिज्म मतलब उनके इंटरनली जो ग्रुप्स बने हुए थे अलग अलग आइडियोलॉजीज के, दे वर नॉट सो स्ट्रांगली यूनाइटेड जैसे वो नेहरू के टाइम पे होते थे। अब जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यहाँ चल रही थी, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, इसीलिए इसके टर्म, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, फैक्शनलिज्म, ठीक है, इंटरनल फैक्शनिज्म विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी टू टॉपल द कांग्रेस, इसी वजह से अंदर अगर वो वीक हो गए, इसी की वजह से और पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इनको हटा सकते हैं पावर से। द सोशलिस्ट लीडर, यस अंडरलाइन दिस, राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रेटजी द नेम नॉन कांग्रेसिज्म। आ सकता है 1 मार्क्स में, दैट हु गेव दिस स्ट्रेटजी और दिस न्यू पॉलिटिकल फिनोमिना ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, तो इट वाज गिवन बाय सोशलिस्ट लीडर, ही वाज फ्रॉम द सोशलिस्ट पार्टी, सो दैट इज व्हाई इट्स रिटन सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, remember this, it can be there for the 1 marks. He also produced a theoretical argument in its defense, and he has also defended, he has given an argument कि उसने ये नेम क्यों दिया है नॉन कांग्रेसिज्म, कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज्ड टू इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो फंक्शन कर रही थी, इट वाज ट्राइंग टू बी लाइक इट वाज नॉट लुकिंग आफ्टर द पीपल, द चॉइसेस, द डिजायर्स, जो लोग ये उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रही थी, इट वाज मोर बीइंग एज या डिक्टेटरशिप, लाइक डिक्टेटर, इट वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट ओन विश। इंदिरा गांधी का जो मन हो रहा था, शी वाज डूइंग अकॉर्डिंग टू हर, लोगों के कंसेंट क्या है, लोगों की डिजायर्स क्या है, नीड्स क्या है, उसका ध्यान कांग्रेस अब नहीं रख रही थी। इसीलिए अब इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, जो कि हमारे नेहरू ने शुरू किया था, डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमारी कंट्री में, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। उसी के लिए उन्होंने एक टर्म दी है नॉन कांग्रेसिज्म। तो उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें कांग्रेस को डोमिनेंस से हटाना है, जब वी वांट इंदिरा गांधी टू रिमूव फ्रॉम द दिस फंक्शनिंग एंड पावर, पर उन्होंने क्या रीजन दिया है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो अनडेमोक्रेटिक वे में फंक्शन कर रही थी, एंड वी वांट टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड डेमोक्रेसी, वी आर ऑल कमिंग अप अगेंस्ट कांग्रेस। तो ये टाइप से इलेक्शन से पहले वो दिखा रहे हैं हम क्यों कांग्रेस के अगेंस्ट आ रहे हैं। हमारा बस मोटिव ये नहीं है कि इंदिरा गांधी को हटाना है या कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म करना है या हमें पावर चाहिए, दे वर शोइंग समथिंग टू द पीपल दैट एक रीजन है व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए दे आर फाइटिंग अगेंस्ट कांग्रेस, ठीक है। सो दिस मच आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एनी यू कैन रीड दिस मच, आई विल टेक इट लेटर ऑन, एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी।